Good afternoon to all. Myself Priyanka Sharma, and I welcome you all in the EdRix classes. So we are doing the question of the real analysis question series, under which we are just going to cover the lots of topic inside. Okay, we are going to cover the different types of question under this topic. Okay, so let's start with a question that is being given to us. Okay, so the question that is being given to us is that you are given with that your f is being defined from r square to r, and it is defined as like this, that is being given to us. Okay, and we have to choose either one of the four option that is given to us, that f is differentiable or f is not differentiable and the directional derivative of f exists in all direction, or f is continuous and the directional derivative of exist in all direction, or f is continuous and the directional derivative of f does not exist in some direction. Okay, see, we know the one thing that if f is differentiable, this implies that f is continuous, and if f is continuous, this implies that its limit exists. So this statement is true, but this is not true, that if limit exists, we can't say about its continuity, and if a function is continuous, we can't say about the differentiability, right? So first of all, for the differentiability criteria, there is also one thing, that if the partial derivatives does not exist, from that note we can also say that our f will not be a differentiable function, right? So let's start doing this question. So let's evaluate the partial derivative. That means fx and fy, if it does not exist at my point 0 comma 0, because they are talking about 0 and 0, so we take the point at which we have to evaluate as 0 and 0. If any of them does not exist at 0 and 0, then we can say that f will not be differentiable. Okay, so we know that f of y at 0 0, right, it will be equals to limit of k tends to 0 f of, right, x comma y plus k minus f of x comma y upon of h, right, and the x and y are the points 0 and 0. That means limit of k tends to 0, that is f of 0 comma k minus of f of 0 comma 0 upon of k, right? So how it can be written out? So it can be written as sine of k square upon of 0 minus of under the root of 0 square plus of k square, and this term is 0 upon of k, right? So this is nothing but infinity, that means it does not exist, right? So what does it means? It means that my f is not differentiable at point 0 comma 0. So from which criteria I'm saying? I'm saying it from the criteria of the partial derivative. That is, if either of the fx or fy does not exist, we can say directly from them that my f will not be differentiable, right, if they does not exist. Okay, so that means we get one thing, that f is not differentiable. Now does its डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो ये निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या इसका दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि अगर ये करेक्ट हो गया तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो हमें बाकी चीजों को चेक करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स सी इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट? सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच यू वन माइनस वाई plus h u2 minus of f of x comma y upon of h, where my h tends to infinity, right? So किस पे निकालना है? 0 comma 0 पे निकालना है. That means limit of h tends to infinity. This is f of h u1 comma h u2 minus of f of 0 comma 0 upon of h, right? इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? This is your x, this is your y, put this value in the function. तो मुझे क्या मिल जाएगा? That is sine of h square u2 square upon of h u1, right,
अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर u2 स्क्वायर, और ये वाली टर्म की वैल्यू 0 आएगी अपॉन h, राइट। सो अब ये वाला आउटपुट मेरे पास कितना निकल के आएगा, लेट्स सी। ओके, तो आउटपुट मेरा कितना निकल के आएगा, यहाँ से h स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगी, राइट। तो ये वाली चीज मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन ऑफ h u2 स्क्वायर अपॉन ऑफ u1, राइट। अब h को अगर मैं 0 रखूंगी तो साइन 0 0, तो आउटपुट कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। दैट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर, मेरे हर एक पॉइंट के ऊपर, राइट। तो मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स विच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है, एक रिजल्ट जो अभी मैंने बार बार बोला है, वो क्या रिजल्ट है कि मेरा जो एफ एक्स और एफ वाई अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी हम डायरेक्ट ऑप्शन सी टेक कर सकते हैं, बिकॉज एक ऑप्शन करेक्ट है तो दूसरे के भी 99% चांस होते हैं कि वो भी करेक्ट होगा अगर उसके साथ कोई दूसरी स्टेटमेंट भी लिखी है तो, ठीक है। सो ऑन दैट नोट मैं कह सकती थी ये निकालो, राइट। सो ऑन दैट बेसिस मेरा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और हमने दोनों चीजें इवैल्यूएट कर रही हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी मेरा एग्जिस्ट कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, और दूसरा कि एफ मेरा डिफरेंशिएबल भी नहीं है बिकॉज मेरा पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज एफ ऑफ वाई मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। एंड आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि एक डी बोला हुआ है बी द रीजन ऑफ आर स्क्वायर, और वो किससे बाउंडेड है, पैराबोला से बाउंडेड है और एक लाइन से बाउंडेड है, राइट। और आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, डबल इंटीग्रेशन की, राइट। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एक पैराबोला दे रखा है यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू x। तो इसका पहले बनाते हैं हम डायग्राम। दैट मीन्स एक ये दे रखा है, राइट, और दूसरा मुझे पैराबोला दे रखा है। और ये पैराबोला की फिगर कैसे बनेगी, ये पैराबोला बनेगा हमारा ऐसे, राइट, ऐसे बनेगा। दैट मीन्स इसका इंटरसेक्शन एक यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यानी कि ये हो गया एक 0 0 पॉइंट। तो ये वाला इंटरसेक्शन मुझे निकालना है कि इस पे वैल्यू क्या होगी, तो हम इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं। दैट मीन्स वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। x लिया हमने कॉमन, तो x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x की वैल्यू आ गई 2, और एक लाइन है तो दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 2,2। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,2 और 0,0 है, और मुझे इस रीजन के साथ इंटीग्रेशन करना और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो, लाइक इफ यू गो हॉरिजॉन्टली तो आपका y के अंदर वेरिएशन आ रहा है, दैट मीन्स y लाइन से लेके यहाँ तक जाएगा, और अगर वर्टिकली चलते हैं तो x का वेरिएशन चलेगा, दैट मीन्स x पैराबोला से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, लाइन तक जाएगा। तो अगर मैं x के अकॉर्डिंगली चलती हूँ तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y स्क्वायर से लेके y स्क्वायर बाय 2 से लेके लाइन तक आएगा, और y की रेंज क्या है, y की रेंज है 0 से लेके 2 तक, 3xy dx dy, राइट। तो अब सबसे पहले इंटीग्रेशन हम इसका शुरू करते हैं। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0 टू 2 जा रहा है, या y हो गया। अब 3 इसके साथ ही लिख देते हैं, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स इट इज फ्रॉम y स्क्वायर अपॉन 2 टू y। So when I'll solve it, what I will get, that means y is equals to from 0 to 2, this is 3 of y, ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ बाहर लिख दिया, this is y square minus of y 4 upon of 2 upon of 4, right, ये आ गया आपका dy, right। अब इसको 3/2 हम बाहर कर देते हैं पूरा, एंड y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है। दिस इज y क्यूब एंड दिस इज y 5 अपॉन 4 ऑफ dy, राइट। इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा, 3/2, इंटीग्रेशन लेते हैं y की 4 अपॉन ऑफ 4 माइनस ऑफ y की 6 अपॉन 24, राइट।
and this the integration goes from 0 to 2. तो ये क्या आएगा आपका 3/2 of 2 raised to the power 4. कितना हो जाएगा आपका 2 raised to the power 4? 2 raised to the power 4 upon 4, right, minus 2 raised to the power 6 upon 24, right. तो आप इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आउटपुट निकल के आएगा? इट विल बी 3/2 of 4 minus 8/3, right, and when you solve this integration it will be like 6 minus of 4 and it will be equals to 2. तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2 निकल के आई है. अब कॉन्सेप्ट करने का क्या चेंज हो सकता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस है इस टॉपिक में वो कोई भी इसको इजीली सॉल्व कर सकता है. अब क्वेश्चन के अंदर स्लाइड क्या चेंज था? वो ये था कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन आइदर बाय टेकिंग योर वर्टिकल पार्ट और आइदर कैन टेक योर हॉरिजॉन्टल पार्ट. लाइक मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टली किया है. अब मैंने हॉरिजॉन्टली इसलिए किया है क्योंकि अगर वर्टिकली चलते तो रूट वाला कंपोनेंट आता और रूट वाली कंपोनेंट की कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने इसको ऐसे किया है. आप इसको वर्टिकल भी कर सकते थे. लाइक यू कैन हैव योर इंटीग्रेशन एज योर y varies from x is equals to under the root of 2x, right, and your x again varies from 0 to 2 because the range of x is from 0 to 2 itself, right. This is 3xy dy dx. You can also this two question like this, but to avoid that under root part I have used it this part. If you want to do your question like this you can also do this. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में, आप आसानी से इसको सॉल्व वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, कैलकुलेशन की कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है कि आपको u x, y, z डिफाइन कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ, ओके, डिफाइन कर रखा है एज u, आपको डिफाइन कर रखा है u ऑफ x, y, z डिफाइन कर रखा है x स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4z स्क्वायर, राइट. किस पॉइंट पे? x, y, z पे, जिसमें किसके अंदर बिलोंग करेंगे? ऑब्वियसली r क्यूब के अंदर. x होता है तो खाली r के अंदर, x, y होता है तो किसके अंदर बिलोंग करेगा? r स्क्वायर के अंदर. अब x, y, z है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा? r क्यूब के अंदर, राइट. सो आपको क्या निकालना है? देन आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है u का इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. इसकी डायरेक्शन में कौन कौन से पॉइंट पे? 1, 5, 1, 0, दैट इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. आपको ये निकालना है. नाउ अब ये कैसे करोगे? डायरेक्शन डेरिवेटिव को निकालने के लिए क्या करते हैं? एक तो हमारे पास फॉर्मूला है. अगर लिमिट वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस h u1 कॉमा y प्लस h u2 माइनस ऑफ f ऑफ x कॉमा y अपॉन ऑफ h. इफ पीपल आर कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी इजी है. अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है. क्या निकालने के लिए? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए. और वो ये है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, जिसका मुझे निकालना है. ग्रेडियंट निकालना होता है फंक्शन का डॉट यूनिट वेक्टर, राइट. यूनिट वेक्टर, राइट. अब ये जिस डायरेक्शन में दे रखा है ये मेरे पास वेक्टर है. मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यूनिट वेक्टर है या यूनिट वेक्टर नहीं है? तो यूनिट वेक्टर का क्या आता है हमारे पास? मॉड हमेशा निकल के आएगा मेरे पास 1, राइट. तो इसका मॉड देख लेते हैं क्या निकल के आया. तो दिस इज 3/5 का स्क्वायर प्लस j मेरे पास नहीं है, प्लस सॉरी y कंपोनेंट मेरे पास नहीं है तो आई कीप इट एज 0, देन माइनस 4/5 का स्क्वायर. तो ये कितना निकल के आएगा? दिस इज 9/25 प्लस 16/25. तो ये कितना आ गया मेरे पास? 25/25, राइट. ये वाली चीज मेरे पास निकल के आ चुकी है. नाउ ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? दैट मीन्स ये जो दे रखा है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ अ, डायरेक्शन जो दे रखी है ये मेरे पास यूनिट वेक्टर ही है, राइट. नाउ अगली चीज, दैट मीन्स ये जो मेरा n दे रखा है ये मेरा यूनिट वेक्टर दे रखा है. दैट मीन्स 3/5 ऑफ i कैप माइनस 4/5 ऑफ
जे कैप, ये मेरे को क्या दे रखा है, ये मुझे यूनिट वेक्टर ही दे रखा है। अब ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, मुझे फंक्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यानी कि स्केलर फंक्शन जो मुझे डिफाइंड है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 4z²। क्या निकालना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2x आई कैप, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो -2 j कैप, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 8z k कैप। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी दे रखा है, ग्रेडियंट हमने निकाल लिया, तो ग्रेडियंट क्या है हमारा 2x आई कैप प्लस दिस इज -2 j कैप प्लस 8z k कैप, ठीक है। और यूनिट वेक्टर आपको कितना दे रखा है, यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है 3/5 आई कैप माइनस 0 j कैप प्लस -4/5 ऑफ k कैप, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब सबको पता है कि i डॉट i कितना होता है 0, सॉरी 1, i डॉट j कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम यही लॉ वेक्टर के यूज करने वाले हैं, दैट i डॉट i is 1, that means j dot j is also 1 and k dot k is equals to also 1, और अगर i के साथ j k कुछ भी आ जाता है तो वो चीज 0 हो जाएगी, तो सिर्फ i कंपोनेंट को किसके साथ करना है, i कंपोनेंट के साथ करेंगे, तो दिस इज 2x इंटू 3/5, ये 0 हो गया है। देन अगला आ जाएगा माइनस ऑफ 8/z इंटू 4/5, राइट। तो ये चीज हमारी कैसे हो चुकी है, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4/5, राइट, दिस इज 4/5, या सो दिस इज 6x/5 माइनस 32z/5, ठीक है। अब देखो क्या किस पे निकालनी थी, 5z10 पे मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था u का इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, दैट मींस आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बिकॉज मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है कौन से पॉइंट पे, 5, 10 और 0 पे, तो ये कितना निकल के आया 6/5 ऑफ x, राइट, माइनस ऑफ 32z अपॉन ऑफ 5, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, z क्या हो गया 0, तो ये पूरा कंपोनेंट क्या हो चुका है 0 हो चुका है, और x कितना है मेरा 5, तो 6/5 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई मेरी 6 निकल के आ गई, दैट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका कितना हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, जो कि हमने क्या पता लगाया कि मेरा यूनिट वेक्टर भी है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, हमारी वैल्यू आ गई हमारी 6, ठीक है। आई थिंक ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज यूनिट वेक्टर नहीं होती तो हमें ये जो वेक्टर हमें गिवन है ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तो इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बनाने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको सपोज ये मेरा वेक्टर दे रखा होता 2i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाना होता, कैसे बनाते हैं इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर मैं बनाती 2 का स्क्वायर लेती 4, ये 1 प्लस 1, तो कितना आ गया √6, पूरे को √6 से क्या करती मैं डिवाइड कर देती, अब इसको चेक करती मैं, ठीक है, इसको चेक करती तो दैट मीन्स 4/6 प्लस इसको चेक करती दैट मीन्स इसका स्क्वायर लेती है अपॉन ऑफ 6, ये 1/6 हो जाता प्लस 1/6 हो जाता 6/6, तो अब ये यूनिट वेक्टर बन चुका है। तो यूनिट वेक्टर को बनाने का तरीका होता है कि कोई भी वेक्टर दे रखा होता है, ठीक है, उसका नॉर्म निकालो, राइट, या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसको पूरे गिवन वेक्टर से डिवाइड कर दो, तो हमारा उससे क्या निकल के आ जाता है, फिर हमारा वो यूनिट वेक्टर में टर्न आउट हो जाता है। और चेक करने का तरीका होता है कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो मेरा यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या है 1 ना, तो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है चेक करने का, राइट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से भी हमारे काफी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। आई थिंक ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि अगर D क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R² के अंदर, राइट, एंड मैं क्या कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ क्लोज डिस्क को विद द सेंटर एट द ओरिजिन विद द रेडियस R²,
राइट, मैं ये कर रही हूँ। दैट मीन सेंटर ऑफ द ओरिजिन यानी कि रेडियस दे रखा है आपको 2, क्लोज डिस्क की बात कर रखी है। दैट मीन्स क्लोज डिस्क का क्या दे रखा होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है, राइट। रेडियस दे रखा है 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, राइट। और आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब देखो, आपको दे रखा है ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स डी वाई, ये वाली चीज दे रखी है, आपको इसे इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट करने का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इंटीग्रल को चेंज करेंगे, आर डी थीटा वाली टर्म्स में हम इसको चेंज करेंगे, राइट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर लेते हैं ना हम, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज क्या होती है हमारी, हाँ ये वाली चीज निकल के आती है, क्यों, क्योंकि x को क्या लेते हैं हम आर कॉस थीटा और y को क्या लेते हैं हम अपना आर साइन थीटा, राइट। तो ये आर स्क्वायर निकल के कैसे आता है मैं आपको ये बता रही हूँ। तो दैट मीन्स x की जगह में पुट करूंगी तो आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y की जगह पे अगर पुट करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दैट मीन्स टेकिंग आर स्क्वायर टू बी कॉमन एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और जैकोबियन कितना आएगा, आर। दैट मीन्स अगर मैं इसको आर में कन्वर्ट करती हूँ, दैट विल बी आर स्क्वायर आर डी थीटा, ठीक है। नाउ आर कहाँ से रेडियस दे रखा है, आर कहाँ से, ओरिजिन से लेके 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 से लेके 2 तक, और थीटा जाएगा आपका 0 से लेके 2 पाई तक, क्यों, क्योंकि क्लोज डिस्क की बात दे रखी है जिसके अंदर पूरा एंगल आएगा आपका 2 पाई, ठीक है। नाउ अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स हम कौन से इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आर स्क्वायर आर डी आर को। दैट मीन्स आर स्क्वायर को अगर मैं लेती हूँ टी तो आ जाएगा 2 आर डी आर इज इक्वल्स टू डी टी, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज आर डी आर इज इक्वल्स टू डी टी बाय 2, राइट, एंड इट इज फ्रॉम 0 to 2 दे रखा था, राइट। तो दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी हो जाएगा, और आर डी आर किसके इक्वल हो गया, डी टी बाय 2 के इक्वल हो गया। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक पे जाएगा, यानी कि 0 से लेके 4 तक जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी विद माइनस साइन, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 4 तक जा रहा है। दैट मीन्स इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, ई रेज टू द पावर -4 और -1, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 ई रेज माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर -4 अपॉन 2, राइट। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। तो अंदर वाले इंटीग्रेशन में क्या बचा है, 0 से लेके 2 पाई डी थीटा बचा हुआ है, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 पाई। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग टू 2 पाई ओवर हियर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आउटपुट क्या निकल गया, दैट इज पाई ऑफ 1 माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर -4, ये निकल के आ गया। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अगर इसको मैं आर और थीटा वाले में चेंज नहीं करती तो इट विल बी अ वेरी लेंदी एंड अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर अस, इसलिए इसको आर और थीटा वाले में चेंज करना वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो आई थिंक ये वाली चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू, ओके, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आर का पता चला है बिकॉज बोला हुआ कि क्लोज डिस्क दे रखा है एट द सेंटर, ऑब्वियसली सेंटर पे है, और ओरिजिन से लेके रेडियस वाला पॉइंट, तो दैट मींस दिस इज 0 एंड दिस इज 2, रेडियस आपको दे रखा है 2, तो वहां से हमने पता लगा लिया क्लोज डिस्क दे रखी है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास यही होती है, और यहाँ से हमने इसको आर और थीटा के अंदर कन्वर्ट किया जिसमें जैकोबियन हमेशा आर आता है निकल के, तो इसलिए जैकोबियन है, राइट, दिस इज योर जैकोबियन, ओके। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज बीइंग क्लियर टू यू, ओके। सो नाउ ऑलराइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि लेट एस बी द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, एस बी अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड वी, आपको ये दे रखा है, राइट। और आपको एक्स की रेंज दे रखी है, वाई की रेंज दे रखी है, और जेड की रेंज दे रखी है, ठीक है। और डिनोट द यूनिट वेक्टर, लाइक एन क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है टू द एस, जिसमें एफ आपको ये डिफाइंड है, आपको अगेन क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। नाउ
जब भी हम डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं किसका, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, because Gauss divergence theorem helps in converting a surface integral into a volume integral. फॉर्मूला किसका होता है इसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, राइट. सो नाउ योर एफ इज बीइंग गिवन टू यू एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो अब इसका डाइवर्जेंस क्या निकल के आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकल के आएगा, फर्स्ट पार्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दूसरे पार्ट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और तीसरे पार्ट को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटपुट निकल के आएगा मेरे पास 3. दैट मीन्स डाइवर्जेंस निकल के आ गया मेरे पास 3 ऑफ dv, राइट. अब सरफेस ये नहीं बता रखा कि स्फीयर है, एलिप्सॉइड है या फिर हेमिस्फीयर है, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ रेंजेस दे रखी हैं. तो ये तो और इजी हो चुका है कि सिर्फ रेंज लिखनी है कि x वेरिएशन है फ्रॉम 0 टू 1, y की वेरिएशन है फ्रॉम 0 टू 2 और z की वेरिएशन है फ्रॉम 0 टू 3, राइट. तो इसको बाहर लिखो तो x यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर x 0 से 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, y है 0 से 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर z है 0 से 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3. तो ये आ जाएगा मेरा 9.2 दैट इज 18. तो डाइवर्ज आपका ये क्या निकल के आ चुका है, द सरफेस इंटीग्रल एफ एन डी एस क्या निकल के आ चुका है आपका 18, जो कि मैंने किसकी हेल्प से निकाला, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, because this theorem helps in converting the double integral into the triple integral in which I have to evaluate just the divergence which I have evaluated, and because कुछ like surface नहीं दे रखा, ranges दे रखे हैं तो और easy calculation हो चुकी है. I have just substituted the value over here and just evaluated them, right. So यहाँ से solution निकल के आ गया है कि इसका output क्या होने वाला है, right. I think ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसका क्या निकाला है. सो सरफेस इंटीग्रल क्या निकल के आ चुका है हमारा, दैट इज 80. ओके.